Good morning, students. Today I am going to explain the remaining chapter. Yes, today I am going to explain the remaining chapter of natural vegetation. So today's topic is temperate grassland. Temperate grassland are found colder and drier region. Basically जो temperate grassland है ड्राई रीजन में पाई जाती है. As the amount of precipitation is very low. जो amount है precipitation का है, precipitation गुड मॉर्निंग बेटा. precipitation का जो amount है वो बहुत कम होता है. precipitation क्या होता है? snow, sleet, rain, ये सब precipitation में आता है. तो बहुत लो होता है. जो ग्रास होती है यहाँ पे वो शॉर्ट होती है और लेस डेंस होती है ना, डेंस नहीं होती. एंड ट्रीज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट. ट्रीज लगभग एब्सेंट ही रहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, बिल्कुल नहीं होते. These are very suitable for cattle and sheep rearing and are being used for extensive wheat and corn cultivation. ये बहुत suitable होती है कैटल्स के लिए. जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन ग्रासेस पे डिपेंड रहते हैं. तो शीप रेयरिंग के लिए बहुत ये जो ग्रास लैंड है बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे जो एक्सटेंसिव वीट एंड कॉर्न कल्टीवेशन होता है. कॉर्न और वीट के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन मतलब रेन वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वीट एंड कॉर्न होता है. टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉल्ड स्टेप्स इन यूरेशिया, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो अलग अलग कंट्रीज में जो ग्रासलैंड है अलग अलग नामों से जानी जाती है. इसको आप अंडरलाइन कर देना. स्विफ्ट मूविंग एनिमल लाइक एंटीलोप्स, हॉर्स, जिराफ, वाइल्ड asses, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, रैबिट्स इस ग्रासलैंड जो टेम्परेट रीजन है इसमें पाई जाती है. ऑस्ट्रेलियन टेम्परेट ग्रासलैंड है. फ्लाइटलेस जायंट बर्ड ईमू इज फाउंड. जो फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकती है, ईमू आपने पढ़ा होगा जीके में, वो यहाँ पे पाई जाती है. Desert vegetation and wildlife. Deserts are basically two types के desert होते हैं, cold desert and hot desert. तो deserts जो होते हैं वो dry होते हैं, sandy areas होते हैं जिसमें extreme climatic condition होती है. ठीक है, बहुत extreme climatic गर्मी होती है. Desert are found all over the world. Desert all over the world पाए जाते हैं. On the basis of the prevailing climatic condition and relief feature, prevailing climatic condition और relief feature के basis पे desert world over are classified into two types. Desert कितने तरह के होते हैं? Two types, hot desert and cold desert. तो hot desert are found in tropical and subtropical area. Hot desert basically are found in tropical or subtropical areas. These deserts experience very high temperature with extremely low rainfall. Hot desert है उसमें जो temperature होता है बहुत high experience किया जाता है और rainfall बहुत low होती है. Amount of rainfall is very less. Vegetation cover includes thorny bushes, cacti and a few short trees. Vegetation जो cover है hot desert में basically thorny bushes होती हैं. जो thorn होता है उसमें ये moisture retain करके रखते हैं. तो cactus है, short trees हैं, basically hot desert में पाए जाते हैं. These have long roots,
thick stems, waxy leaves and thorn which have to survive in the harsh climatic condition. इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, थिक स्टेम्स होती हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं, है ना, क्योंकि बहुत गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो वैक्सी लीव्स होती हैं, तो इसी की वजह से ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं, ये वैक्सी लीव्स की वजह से, थिक स्टेम्स की वजह से और लॉन्ग रूट की वजह से। Few trees like the date palms are found near oases. जो few trees है, oases जहाँ पे रेगिस्तान में कहीं पानी जहाँ पाया जाता है, that is called the oasis, वहाँ पे palm trees भी पाए जाते हैं। The Sahara and the Kalahari Desert of Africa, Atacama Desert of South America, Sonoran Desert of North America, the Great Australian Desert, Arabian Desert and the Indian Desert are the important ones which are generally found along the western margin of कॉन्टिनेंट्स। अब ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं, सहारा में है, कलारी में है ना, एटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, सोलोरन में है नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये सब वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट। कैमल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनिमल माना जाता है दैट इज द कैमल। कैमल की बॉडी फीचर ही बहुत स्पेशल होता है ना, कैमल की जो बॉडी फीचर है बहुत स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं, इसीलिए वो बहुत दिनों तक सरवाइव कर पाता है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में, है ना। तो उसके नोस्ट्रिल्स हैं, बॉडी फीचर में क्या है, नोस्ट्रिल्स है, आईज, नेक, है ना, टफ लिप्स एंड टंग विच हैव देम टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ये सारे बॉडी फीचर उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। आपको पता है कैमल बहुत दिनों तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है। इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अदर एनिमल फाउंड हियर आर एंटीलोप्स, गैजल्स, वाइल्ड asses, rodent, desert foxes, snakes, lizards, ये टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। अब नाउ कोल्ड डेजर्ट। द कोल्ड डेजर्ट आर लोकेटेड इन हायर लैटिट्यूड एंड ऑन हाई माउंटेन्स। जो कोल्ड डेजर्ट है हाई लैटिट्यूड में, ऊंचाई पे पाए जाते हैं, बेसिकली हाई माउंटेन्स पे। ये नॉर्थ पोल, यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वेजिटेशन लार्ज स्केल में यहाँ पे नहीं होती। स्मॉल प्लांट्स होते हैं मॉसेस के, लिचेंस के, है ना, यहाँ पे वही होता है। शॉर्ट समर्स होती हैं। ट्रीलेस रीजन आर कॉल्ड द टुंड्रा। बिल्कुल ट्री जहाँ पे नहीं होते दैट इज कॉल्ड द टुंड्रा रीजन। Animals here have thick skin of fur which protect them from extremely cold condition. जो animals होते हैं cold desert में, उनकी जो स्किन होती है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और ऊपर जो बाल होते हैं फर टाइप के बाल होते हैं ना, फर होते हैं। ये इनको एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में प्रोटेक्ट करती है, जो इनकी थिक स्किन है और जो फर है। इसमें पोलार बियर है, मस्कॉक्स है, सील्स है, वॉल्रसेस है, रेंडियर्स है, आर्कटिक आउल्स, स्नो फॉक्सेस, सम ऑफ एनिमल आर फाउंड हियर। यहाँ पे कोल्ड रीजन में, ये कोल्ड डेजर्ट में ये वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। Human activities have transformed the natural vegetation cover as well as the animal life all over the earth. जो human activities हैं, अब natural vegetation को उनकी activities की वजह से transform हो चुकी है पूरी ओवर द अर्थ पे। डिफॉरेस्टेशन, अब ह्यूमन एक्टिविटीज से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये शोइंग देयर इम्पैक्ट एवरी, ये दिखा रहे हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से नेचुरल वेजिटेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बहुत
मतलब ऑल ओवर द एनिमल लाइफ के लिए भी, वेजिटेशन कवर के लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल है. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड बर्ड्स आर इधर एंडेंजर्ड स्पीसीज और हैव बिकम एक्सटिंक्ट. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, मतलब गायब होने की कगार पे हैं. और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, डिसअपियर, है ना. एक्सटिंक्ट का मतलब है बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं. अब सिर्फ हम उनको फोटोज में देखते हैं, वो मिलते नहीं हैं. और एंडेंजर्ड का मतलब है कि खतरे में, कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी पृथ्वी से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो human beings are modifying and even destroying several ecosystems to meet one's need and sometimes for commercial gain. Human being क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, सेवरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी नीड के लिए या अपने कमर्शियल पर्पस के लिए. वो ये सारी चीज़ें कर रहा है. डिफॉरेस्टेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग. कौन बताएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मैम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. यस, वेरी गुड. हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? जब इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएंगी तो क्या है, जो आइस है ग्लेशियर्स के रूप में वो मेल्ट हो जाएंगी. जब वो मेल्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? हर जगह पानी पानी हो जाएगा. इसलिए गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. टेम्परेचर आर राइजिंग, ग्लेशियर आर मेल्टिंग एंड डेजर्ट्स आर एक्सपेंडिंग. इससे क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, डेजर्ट क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है. वी नीड टू डू समथिंग टू चेक दिस. हमें इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए. एफर्ट्स हैव टू बी मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन ओनली कैन आवर प्लेनेट बी सेव. जब पूरे वर्ल्ड में ये एफर्ट्स किए जाएंगे, हर इंडिविजुअल इसके लिए एफर्ट करेगा, तभी हमारा प्लेनेट सेव किया जा सकता है. अदरवाइज किसकी ओर है हम? डिस्ट्रक्शन की तरफ है, डिस्ट्रॉय की तरफ है. लेट्स थिंक एंड वर्क टुगेदर टू चेंज दिस नेगेटिव ट्रेंड बिकॉज reckless exploitation of the natural resources in any form creates a severe imbalance in the natural balance of the environment. चलो आज मतलब सब लोग सोचो और काम करो इस पे कि कैसे नेगेटिव जो ट्रेंड है, वो जिसमें रेकलेस एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को, और इससे क्या हो रहा है? एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना. नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. तो इसीलिए रियली नीड टू थिंक, हमें ये सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करें. ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है. फोलिएज, इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. फोलिएज होता है लीव्स ऑफ ए ट्री ऑफ द ग्रीनरी. ठीक है, इसको दैट इज द फोलिएज. Canopies, a layer of shelter of leaves that spread over an area like a roof. अब लीव्स के ऊपर मैंने बताया था ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, वो रूफ कैनोपी बन जाती है. कैनोपी में ये होता है कि एक छत की तरह, तो सन रेज डायरेक्टली ग्राउंड पे रीच नहीं कर पाती. ट्रॉपिकल जोन होता है द एरिया लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. ऐसा एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है. दिस इज द हॉटेस्ट जोन. ये आपने पढ़ा है 6 में, इसको हॉटेस्ट जोन कहा जाता है. टेम्परेट जोन होता है जहाँ अर्थ लोकेटेड होती है ट्रॉपिक्स और आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल के बीच में. वहाँ पे क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट रहती है. हर्बीवोर्स आपको सबको पता है, हर्बीवोर्स एनिमल दैट ईट प्लांट्स ओनली. Extreme climate which has very short hot summers and very cold winters. Extreme, चाहे वो hot extreme climate के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी, cold extreme climate के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी. तो chapter has been completed. We can discuss the natural vegetation and life, wildlife with this flow chart.
just see, tropical evergreen forest climate is hot and humid throughout the year. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड पूरा साल. और जो वेजिटेशन है वो डेंस ग्रोथ होता है. डेंस ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमिड पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड रहता है और मतलब सनलाइट को ग्राउंड तक रीच नहीं करने देता. तो ट्री जो रोजवुड है, एवोनी है, महागोनी यहाँ पे पाए जाते हैं. ऐसे एरिया कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में. वाइल्ड लाइफ इसमें दे रखा है, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटेमस, बर्ड्स, इंसेक्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट रहती है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहती है. नॉट टू सो डेंस, ये बहुत ज़्यादा ट्रीज़ यहाँ पे डेंस नहीं होते, शॉर्ट होते हैं. ये ड्राई सीजन में जो ट्रीज़ हैं अपने लीव्स को शेड करते हैं. श्रब्स हो गए, बैम्बूज हो गए, साल, टीक, नीम, ये मेन यहाँ पे मेनली जो कहते हैं ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं. ये इंडिया, थाईलैंड, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है. रीज़न, इसमें जो एनिमल्स हैं उसमें टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, मंकीज है, डियर एंड स्नेक. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट रहती है. इसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं. इसमें फॉरेस्ट में हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, जैसे ओक, पाइन, वेटर, मलबरी. ये यूएसए, ब्राज़ील, ईस्ट वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में रहता है. पांडा यहाँ का एनिमल जो पाए जाते हैं, पांडा, डियर, बेयर्स, एंटेलोप्स एंड वोल्व्स पाए जाते हैं. टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर बेसिकली कूल टेम्परेचर रहता है. ट्रीज आर शॉर्ट, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में भी ये ट्रीज क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड करते हैं. ठीक है. ट्रीज सच एज ओक, एश, बर्च, मैपल यहाँ पे पाए जाते हैं. ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ चाइना, जापान, न्यूजीलैंड में पाया जाता है. फॉक्सेस, बिसन, बीवर्स, पेजेंट्स यहाँ पे पाया जाता है. मेडिटेरियन वेजिटेशन, ये इसमें ड्राई समर्स होती है और विंटर्स में रेन होता है, रेनिंग होती है. ठीक है. ट्रीज जो डेवलप होते हैं वो वैक्सी लीव्स होती है, थिक बाग्स होते हैं, लॉन्ग रूट्स होती है, जैसे ऑलिव्स हो गए, कॉक्स हो गए, ओक, फिग्स यहाँ पे पाया जाता है. ऐसे एरिया मेडिटेरियन सी के आसपास की जगह पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड. अब वाइल्ड लाइफ ज़्यादा यहाँ पे नहीं पाई जाती, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती. तो नाउ चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. we'll discuss we have discussed all the exercise and queries in the class. So from tomorrow we'll start new chapter. Take care and bye.